Okay, in Standard 7, welcome to SDMES English School, chapter number 14. In chapter number 14, we have first discussed electric circuit, electric switch, and components of electric circuit. In this lecture, we will discuss 14.2 heating effect of electric current. In this, we will see activity 14.1. Take an electric cell, a bulb, a switch, and connecting wires. You have to take four things, that is electric cell, bulb, a switch, and connecting wires. Make an electric circuit as shown in figure 14.9. Now, where is figure 14.9? So, you can watch this. This is the figure 14.9. Is this type of figure you have to this type of circuit you have to make. Now this activity has to be done using only one cell. Now you just have to take one cell, keep the switch in the off position. Does the bulb glow? Touch the bulb. Now move the electric switch to the on position and let the bulb glow for a minute or so. Again touch the bulb. Now when the switch is in off position, that means that the bulb is not glowing. So that's why in off position the bulb will not glow, and in on position bulb will glow. Now if you touch in on position, you can feel that there is something heating in bulb. Now, what do you mean by this activity? I will explain in Hindi also, that you have to take, मतलब आपको इलेक्ट्रिक सेल लेना है, बल्ब लेना है, स्विच लेना है और कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं, फिर एक सर्किट बनानी है। सर्किट बनाकर आपको उसमें सिर्फ एक ही सेल का यूज करना है। पहले आपको स्विच को ऑफ रखना है, उसके बाद बल्ब को टच करना, देखना है कि ग्लो कर रहा है कि नहीं, और अगर ग्लो नहीं कर रहा है फिर उसको टच भी करना है, टच करके भी उसको फील करना है कैसा है वो। नाउ इन सेकेंड थिंग, अब आपको क्या करना है, बल्ब को स्विच को ऑन कर देना है जिससे कि बल्ब ग्लो होगा। नाउ आफ्टर दैट, थोड़ी देर के बाद, एक मिनट या उसके बाद आपको बल्ब को टच कर कर देखना है कि कुछ डिफरेंस आप फील कर सकते हो या नहीं। नाउ आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू ऑफ पोजीशन, टच द बल्ब अगेन। नाउ आफ्टर क्या है, वापस से बल्ब को ऑफ कर देना है और उसके बाद वापस से थोड़ी देर के बाद फील करके देखना है। नाउ इन दिस एक्टिविटी यू कैन फील दैट व्हेन यू switch on the switch on and the bulb will glow for some time, you can feel that the bulb is heating. By touching you can feel that. It means that कि अगर आप बल्ब को टच करोगे चालू करने के बाद, ऑन करने के बाद कुछ देर के बाद, तो आप फील कर सकते हो कि बल्ब जो है थोड़ा हीट कर रहा है। ओके, लेकिन ऑफ पोजीशन में क्या होता है कि बल्ब हीट नहीं कर रहा होता है। ओके, सो नाउ इन एक्टिविटी 14.3 देखते हैं। मेक अ सर्किट शोन इन फिगर 14.10। अब जैसे 14.10 में सर्किट दी हुई है उस टाइप की सर्किट आपको बनानी है। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर and tie it between the nails. Okay. In activity 14.3, make a circuit as shown in figure. Take about 10 centimeter long piece of nichrome wire and tie it between the nails. You can get nichrome wire from an electric repair shop. Now touch the wire. Now switch on the current in the circuit by moving the switch to on position. Okay. You can watch that if the circuit, if you are, if the switch is on position, after few seconds touch the wire, do not hold it for a long time, switch off the current,
touch the wire again after a few minutes. Now in this circuit you can watch that a nichrome wire is stitched with two nails. मतलब कि फिगर में आप देख सकते हो, ध्यान से अगर देखोगे तो दो नेल्स है, दो नेल्स को निक्रोम वायर्स की उससे आपको स्टिच किया हुआ है। नाउ स्विच को ऑन करेंगे, अगर ऑन करने के बाद अगर वायर को थोड़ी देर पकड़ के देखेंगे अपने तो वो हीट लगता है अपने को। फिर आफ्टर स्विचिंग ऑफ अगर स्विच ऑफ कर दोगे तो वो क्या लगेगा, धीमे धीमे वो ठंडा हो जाएगा। ओके, अब इस एक्टिविटी में आपको वायर बहुत ज्यादा देर तक पकड़ के रखना ही रखना है क्योंकि हाथ जल सकता है। ओके, नाउ the wire gets hot when an electric current passes through it. This is the heating effect of the electric current. जो वायर है वो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से क्या होता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। नाउ यही हमारा पॉइंट था 14.2, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ can you think of any electric appliance where the heating effect of the electric current is used? Make a list of such appliances. अब एक फिगर दिख रही है हमको, ये सिगड़ी है, इलेक्ट्रिक सिगड़ी है। ओके, ये जो सिगड़ी है इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक हीटर भी बोल सकते हैं हम कुकिंग बनाने के लिए। तो इसके अंदर एक वायर होता है जो जो ग्लो कर रहा है, जो फिगर येलो कलर से, वो जो है वो एक वायर है। और इसको हम जैसे ही स्विच लगा के प्लग में ऑन करते हैं स्विच, वैसे ही धीमे 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 एकदम हीट होने लगता है और बहुत ज्यादा हीट होता है और उसके ऊपर हम कुकिंग कर सकते हैं या हम जो कोई भी चीज हीट कर सकते हैं या रूम हीटर की एज ए रूम हीटर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ जो ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसके अंदर एक वायर की कॉइल बनाई हुई है। ओके, now you may have noticed that when these appliances are switched on, after connecting to the electricity supply, the elements become red hot and give out heat. मतलब ऐसे जो कोई भी अप्लायंसेस है उनके जो वायर्स है वो रेड हॉट कलर के हो जाते हैं और क्या देते हैं, हीट देते हैं। जैसे कि हम आयरनिंग करते हैं ना, आयरनिंग, उसमें आयरनिंग में भी देखो ये आयरनिंग का स्ट्रक्चर दिया हुआ अंदर से हमको, बरोबर। तो उसमें भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही होती है। साथ साथ में हम आजकल हेयर सैलून में जाते हैं तो हेयर ड्राई करवाते हैं। फिर जैसे इलेक्ट्रिक केटल्स होती है तो केटल्स में गर्म करने के लिए भी हीटिंग इफेक्ट का यूज हुआ है। गीजर्स हैं, आयरन्स हैं, हॉट प्लेट्स है। ओके, जैसे तो अलग अलग चीजों के अंदर अलग अलग तरीके से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। इसके ऊपर से बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस बने हुए हैं। जैसे कि अगर कोई भी एक कॉमन चीज की बात करें तो जैसे कि आयरनिंग करते हैं हम, इस्त्री करते हैं ना, तो उसमें भी किसका यूज होता है, अपने हीटिंग इफेक्ट का। इस तरीके से वायर को लगाया हुआ होता है।